Nahum chapter 1, chapter 2, chapter 3. Nahum chapter 1 हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन. The burden of Nineveh, majesty of God in goodness to his people and severity against his enemies. First verse से पढ़ेंगे. The burden of Nineveh, the book of the vision of Nahum the El-Koshite. God is jealous and the Lord revengeth. The Lord revengeth and is furious. The Lord will take vengeance on his adversaries, and he reserveth wrath for his enemies. The Lord is slow to anger and great in power, and will not at all acquit the wicked. The Lord hath his way in the whirlwind and in the storm, and the clouds are the dust of his feet. He rebuketh the sea and maketh it dry, and drieth up all the rivers. Bashan languisheth and Carmel, and the flower of Lebanon languisheth. The mountains quake at him, and the hills melt, and the earth is burned at his presence. Yea, the world and all that dwell therein. Who can stand before his indignation, and who can abide in the fierceness of his anger? His fury is poured out like fire, and the rocks are thrown down by him. The Lord is good, a stronghold in the day of trouble, and he knoweth them that trust in him. But with an overrunning flood he will make an utter end of the place thereof, and darkness shall pursue his enemies. What do ye imagine against the Lord? He will make an utter end. Affliction shall not rise up the second time. For while they be folden together as thorns, and while they are drunken as drunkards, they shall be devoured as stubble fully dry. There is one come out of thee that imagineth evil against the Lord, a wicked counselor. Thus saith the Lord, though they be quiet, and likewise many, yet thus shall they be cut down, when he shall pass through. Though I have afflicted thee, I will afflict thee no more. For now will I break his yoke from off thee, and will burst thy bonds in sunder. And the Lord hath given a commandment concerning thee, that no more of thy name be sown out of the house of thy gods. Will I cut off the graven image and the molten image? I will make thy grave, for thou art vile. Behold upon the mountains the feet of him that bringeth good tidings, that publisheth peace. O Judah, keep thy solemn feasts, perform thy vows, for the wicked shall no more pass through thee. He is utterly cut off. Chapter 2. Judah and Israel being punished, God sends fearful armies against their enemies. First verse say, he that dasheth in pieces is come up before thy face, and the munition watch the way. Make thy loins strong, fortify thy power mightily, for the Lord hath turned away the excellency of Jacob as the excellency of Israel. For the emptiers have emptied them out, and marred their vine branches. The shield of his mighty men is made red. The valiant men are in scarlet. The chariots shall be with flaming torches in the day of his preparation, and the fortress shall be terribly shaken. The chariots shall rage in the streets. They shall jostle one against another in the broad ways. They shall seem like torches. They shall run like the lightnings. He shall recount his worthiest. They shall stumble in their walk. They shall make haste to the wall thereof, and the defense shall be prepared.
The gates of the rivers shall be opened, and the palace shall be dissolved, and Huzzab shall be led away captive. She shall be brought up, and her maids shall lead her as with the voice of doves, tabering upon their breasts. But Nineveh is of old like a pool of water, yet they shall flee away. Stand, stand, shall they cry, but none shall look back. Take ye the spoil of silver, take the spoil of gold, for there is none end of the store and glory out of all the pleasant furniture. She is empty and void and waste, and the heart melteth, and the knees smite together, and much pain is in all loins, and the faces of them all gather blackness. Where is the dwelling of the lions, and the feeding place of the young lions? Where the lion, even the old lion, walked, and the lions whelped, and none made them afraid. The lion did tear in pieces enough for his whelps, and strangled for his lioness, and filled his holes with prey, and his dens with ravin. Behold, I am against thee, saith the Lord of hosts, and I will burn her chariots in the smoke, and the sword shall devour thy young lions, and I will cut off thy prey from the earth, and the voice of thy messengers shall no more be heard. Chapter 3, Miserable ruin of Nineveh. First verse say, Woe to the bloody city! It is all full of lies and robbery. The prey departeth not, the noise of a whip, and the noise of the rattling of the wheels, and of the prancing horses, and of the jumping chariots. The horseman lifteth up both the bright sword and the glittering spear, and there is multitude of slain, and a great number of carcasses, and there is none end of their corpses. They stumble upon their corpses because of the multitude of the whoredoms of the well-favored harlot, the mistress of witchcrafts, that selleth nations through her whoredoms, and families through her witchcrafts. Behold, I am against thee, saith the Lord of hosts, and I will discover thy skirts upon thy face, and I will shew the nations thy nakedness, and the kingdoms thy shame, and I will cast abominable filth upon thee, and make thee vile, and will set thee as a gazing stock. And it shall come to pass that all they that look upon thee shall flee from thee, and say, Nineveh is laid waste. Who will bemoan her? Whence shall I seek comforters for thee? Art thou better than Populus? No, that was situate among the rivers, that had the waters round about it, whose rampart was the sea, and her wall was from the sea. Ethiopia and Egypt were her strength, and it was infinite. Put and Lubim were thy helpers, yet was she carried away. She went into captivity. Her young children also were dashed in pieces at the top of all the streets. And they cast lots for her honorable men, and all her great men were bound in chains. Thou also shalt be drunken, thou shalt be hid, thou also shalt seek strength because of the enemy. All thy strongholds shall be like fig trees with the first ripe figs. If they be shaken, they shall even fall into the mouth of the eater. Behold, thy people in the midst of thee are women. The gates of thy land shall be set wide open unto thine enemies. The fire shall devour thy bars. Draw thee waters for the siege, fortify thy strongholds, go into clay, and tread the mortar, make strong the bricklane. There shall be fire devour thee. The sword shall be cut thee off, it shall eat thee up like the cankerworm. Make thyself many as the cankerworm,
Make thyself many as the locusts. Thou hast multiplied thy merchants above the stars of heaven. The cankerworm spoileth and fleeth away. Thy crowned are as the locusts, and thy captains as the great grasshoppers, which camp in the hedges in the cold day. But when the sun ariseth, they flee away, and their place is not known where they are. Thy shepherds slumber, O king of Assyria. Thy nobles shall dwell in the dust. Thy people is scattered upon the mountains, and no man gathereth them. There is no healing of thy bruise. Thy wound is grievous. All that hear the bruit of thee shall clap the hands over thee. For upon whom hath not thy wickedness passed continually? हम पढ़ेंगे नाहूम की भविष्यवाणी की पुस्तक 1 अध्याय 2 अध्याय 3 अध्याय। बीएसआई बाइबल में से नाहूम पहले अध्याय पहले वचन से। निनवे के विषय में भारी वचन। एलकोशवासी नाहूम के दर्शन की पुस्तक। निनवे के विरुद्ध परमेश्वर का क्रोध। दूसरा वचन आगे पढ़ेंगे। यहोवा जल उठने वाला और बदला लेने वाला ईश्वर है। यहोवा बदला लेने वाला और जलजलाहट करने वाला है। यहोवा अपने द्रोहियों से बदला लेता है और अपने शत्रुओं का पाप नहीं भूलता। यहोवा विलंब से क्रोध करने वाला और बड़ा शक्तिमान है। वह दोषी को किसी प्रकार निर्दोष न ठहराएगा। यहोवा बवंडर और आंधी में होकर चलता है, और बादल उसके पांवों की धूल है। उसके घुड़कने से महानद सूख जाते हैं और समुद्र भी निर्जल हो जाता है। बाशान और कर्मेल कुम्हलाते और लबानोन की हरियाली जाती रहती है। उसके स्पर्श से पहाड़ कांप उठते हैं और पहाड़ियां गल जाती है। उसके प्रताप से पृथ्वी वरन सारा संसार अपने सब रहने वालों समेत थरथरा उठता है। उसके क्रोध का सामना कौन कर सकता है? और जब उसका क्रोध भड़कता है तब कौन ठहर सकता है? उसकी जलजलाहट आग के समान भड़क जाती है और चट्टानें उसकी शक्ति से फट फट कर गिरती है। यहोवा भला है, संकट के दिन में वह दृढ़ गढ़ ठहरता है और अपने शरणागतों की सुधि रखता है। परंतु वह उमड़ती हुई धारा से उसके स्थान का अंत कर देगा और अपने शत्रुओं को खदेड़कर अंधकार में भगा देगा। तुम यहोवा के विरुद्ध क्या कल्पना कर रहे हो? वह तुम्हारा अंत कर देगा। विपत्ति दूसरी बार पड़ने न पाएगी, क्योंकि चाहे वे कांटों से उलझे हुए हो और मदिरा के नशे में चूर भी हो, तो भी वे सूखे खूंटी के समान भस्म किए जाएंगे। तुझ में से एक निकला है जो यहोवा के विरुद्ध कल्पना करता और नीचता की युक्ति बांधता है। यहोवा यूं कहता है, चाहे वे सब प्रकार से सामर्थी हो और बहुत भी हो, तो भी पूरी रीति से काटे जाएंगे और शून्य हो जाएंगे। मैंने तुझे दुख दिया है, परंतु फिर न दूंगा, क्योंकि अब मैं उसका जुआ तेरी गर्दन पर से उतार कर तोड़ डालूंगा और तेरा बंधन फाड़ डालूंगा। यहोवा ने तेरे विषय में यह आज्ञा दी है, आगे को तेरा वंश न चले। मैं तेरे देवालयों में से ढली और गढ़ी हुई मूर्तों को काट डालूंगा। मैं तेरे लिए कब्र खोदूंगा, क्योंकि तू नीच है। देखो, पहाड़ों पर शुभ समाचार का सुनाने वाला और शांति का प्रचार करने वाला आ रहा है। अब हे यहूदा, अपने पर्व मान और अपनी मन्नतें पूरी कर, क्योंकि वह ओछा फिर कभी तेरे बीच में होकर न चलेगा। वह पूरी रीति से नष्ट हुआ है। निनवे का पतन। 2 अध्याय पहले वचन से। सत्यानाश करने वाला तेरे विरुद्ध चढ़ आया है। गढ़ को दृढ़ कर मार्ग देखता हुआ चौकस रहे। अपनी कमर कस, अपना बल बढ़ा दे। यहोवा याकूब की बढ़ाई इस्राएल की बढ़ाई के समान ज्यों की त्यों कर रहा है, क्योंकि उजाड़ने वालों ने उनको उजाड़ दिया है और दाख लता की डालियों का नाश किया है। उसके शूरवीरों की ढालें लाल रंग से रंगी गई और उसके योद्धा लाल रंग के वस्त्र पहने हुए हैं। तैयारी के दिन रथों का लोहा आग के समान चमकता है और भाले हिलाए जाते हैं। रथ सड़कों में बहुत वेग से हांके जाते और चौकों में इधर
उधर चलाए जाते हैं। वे मशालों के समान दिखाई देते हैं और उनका वेग बिजली का सा है। वह अपने शूरवीरों को स्मरण करता है। वे चलते चलते ठोकर खाते हैं। वे शहरपनाह की ओर फुर्ती से जाते हैं और काठ का गुम्मट तैयार किया जाता है। नहरों के द्वार खुल जाते हैं और राजभवन गल कर बैठा जाता है। हुसेब नंगी करके बंधुआई में ले ली जाएगी और उसकी दासियां छाती पीटती हुई पिंडुकों के समान विलाप करेगी। निन्वे जब से बनी है तब से तालाब के समान है, तो भी वे भागे जाते हैं और खड़े हो ऐसा पुकारे जाने पर भी कोई मुंह नहीं मोड़ता। चांदी को लूटो, सोने को लूटो, उसके रखे हुए धन की बहुतायत और वैभव की सब प्रकार की मनभावनी सामग्री का कुछ परिमाण नहीं। वह खाली, छूछी और सूनी हो गई है। मन कच्चा हो गया और पांव कांपते हैं और उन सबों की कंटियों में बड़ी पीड़ा उठी और उन सबों के मुख का रंग उड़ गया है। सिंहों की वह मांद और जवान सिंह के अखेट का वह स्थान कहाँ रहा, जिसमें सिंह और सिंहनी अपने बच्चों समेत बेखटके फिरते थे। सिंह तो अपने बच्चों के लिए बहुत आहेर को फाड़ता था और अपने सिंहनियों के लिए आहेर का गला घोंट घोंट कर ले जाता था और अपनी गुफाओं और मांदों की आहेर से भर लेता था। सेनाओं के यहोवा की यह वाणी है, मैं तेरे विरुद्ध हूँ और उसके रथों को भस्म करके धुएं में उड़ा दूंगा और उसके जवान सिंह सरीखे वीर तलवार से मारे जाएंगे। मैं तेरे आहेर को पृथ्वी पर से नष्ट करूंगा और तेरे दूतों का बोल फिर सुना न जाएगा। 3 अध्याय पहले वचन से। हाय उस हत्यारी नगरी पर, वह तो छल और लूट के धन से भरी हुई है। लूट कम नहीं होती है। कोड़ों की फटकार और पहियों की घड़घड़ाहट हो रही है। घोड़े कूदते फांदते और रथ उछलते चलते हैं। सवार चढ़ाई करते, तलवारें और भाले बिजली के समान चमकते हैं और मारे हुओं की बहुतायत और शवों का बड़ा ढेर है। मुर्दों की कुछ गिनती नहीं। लोग मुर्दों से उठा ठोकर खा कर चलते हैं। यह सब उस अति सुंदर वेश्या और निपुण टोनहीन के छिनाले की बहुतायत के कारण हुआ, जो छिनाले के द्वारा जाति जाति के लोगों को और टोने के द्वारा कुल कुल के लोगों को बेच डालती है। सेनाओं के यहोवा की यह वाणी है, मैं तेरे विरुद्ध हूँ और तेरे वस्त्र को उठाकर तुझे जाति जाति के सामने नंगी और राज्य राज्य के सामने नीचा दिखाऊंगा। मैं तुझ पर घिनौनी वस्तुएं फेंक कर तुझे तुच्छ कर दूंगा और सबसे तेरी हंसी कराऊंगा। जितने तुझे देखेंगे सब तेरे पास से भागकर कहेंगे, निन्वे नष्ट हो गई, कौन उसके कारण विलाप करे। हम उसके लिए शांति देने वाला कहाँ से ढूंढ कर ले आए। क्या तू अम्मोन नगरी से बढ़कर है, जो नहरों के बीच बसी थी और उसके चारों ओर जल था और महानद उसके लिए किला और शहरपनाह का काम देता था। कुश और मिस्री उसको अनगिनत बल देते थे। पुत और लोभी तेरे सहायक थे, तो भी लोग उसको बंधुआई में ले गए और उसके नन्हे बच्चे सड़कों के सिरे पर पटक दिए गए और उसके प्रतिष्ठित पुरुषों के लिए उन्होंने चिट्ठी डाली और उसके सब रईस बेड़ियों से जकड़े गए। तो भी मतवाली होगी, तो घबरा जाएगी, तो भी शत्रु के डर के मारे शरण का स्थान ढूंढेगी। तेरे सब गढ़ ऐसे अंजीर के वृक्षों के समान होंगे, जिनमें पहले पक्के अंजीर लगे हो। यदि वे हिलाए जाए तो फल खाने वाले के मुंह में गिरेंगे। देख, तेरे लोग जो तेरे बीच में हैं, वे स्त्रियां बन गए हैं। तेरे देश में प्रवेश करने के मार्ग तेरे शत्रुओं के लिए बिल्कुल खुले पड़े हैं और रुकावट की छड़ें आग की कौर हो गई है। घिर जाने के दिनों के लिए पानी भर ले और गढ़ों को अधिक दृढ़ कर। कीचड़ में आकर गारा लताड़ और भट्टे को सजा। वहां तो आग में भस्म होगी और तलवार से तू नष्ट हो जाएगी। वह यलेक नामक टिड्डी के समान तुझे निगल जाएगी। यद्यपि तू अरबे नामक टिड्डी के समान अनगिनत भी हो जाए, तेरे व्यापारी आकाश के तारांकन से भी अधिक अनगिनत हुए।
टिड्डी चट करके उड़ जाती है। तेरे मुकुटधारी लोग टिड्डियों के समान और तेरे सेनापति टिड्डियों के दलों सरीखे ठहरेंगे, जो जाड़े के दिन में बाड़ों पर टिकते हैं, परंतु जब सूर्य दिखाई देता है तब भाग जाते हैं और कोई नहीं जानता कि वे कहाँ गए। हे अश्शूर के राजा, तेरे ठहराए हुए चरवाहे ऊँघते हैं, तेरे शूरवीर भारी नींद में पड़ गए हैं। तेरी प्रजा पहाड़ों पर तितर बितर हो गई है और कोई उनको फिर इकट्ठा नहीं करता। तेरा घाव न भर सका, तेरा रोग असाध्य है। जितने तेरा समाचार सुनेंगे वे तेरे ऊपर ताली बजाएंगे, क्योंकि ऐसा कौन है जिस पर तेरी लगातार दुष्टता का प्रभाव न पड़ा हो। थैंक यू आबा फादर गॉड। इन वचनों के अधीन कर पिता हमको और परमेश्वर हमें फिट एंड फिक्स कर ईश्वरीय रचना डिवाइन ऑर्डरलीनेस में हमको लेकर आना। श्री यीशु मसीह के नाम में विनती करते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमीन आमीन आमीन। 2 years बाइबल रीडिंग प्लान, 2 साल का बाइबल रीडिंग प्लान। एक्ट्स 2 chapter 14 वर्स से 24 वर्स, 2 Chronicles 35 chapter। प्रेरितों के काम 2 अध्याय 14 वचन से 24 वचन और दूसरा इतिहास की पुस्तक 35 अध्याय। 2 साल के बाइबल रीडिंग प्लान को, 2 years बाइबल रीडिंग प्लान को हम अकेले में एकांत में बैठकर पढ़ने की योजना बनाए हुए हैं। अगर आप अपने तरीके से इसे पढ़ना चाहते वैसे कर सकते हैं, लेकिन काम इतना ही है, हम पर्सनल टाइम, व्यक्तिगत समय इसीलिए लगा रहे हैं इसमें कि हम अपने अकेले के अंदर के सुधार को प्राप्त कर सके। हमारा जीवन परमेश्वर को भाता हुआ वो बदल कर हमें उसके कामों में इस्तेमाल कर सके। बाकी हम सब जैसे भी पढ़ते हैं, हमारे लिए परमेश्वर का आत्मा एकमात्र कारण है कि हम वचन को समझ बूझ के साथ हमारे जीवन में ले, और यही निश्चित है कि परमेश्वर का आत्मा का लाभ हमने उठाना है। प्रभु यीशु मसीह हम सब के साथ बना रहे। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू आबा फादर गॉड। हमें वचनों के अधीन कर, आज्ञा पालन में बड़ा फिट एंड फिक्स कर, तेरे वचन के अधीन लाकर और हमें ईश्वरीय रचना डिवाइन ऑर्डरलीनेस में लेकर आ। नासरी यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं पिता, सुन और कबूल कर। आमीन आमीन आमीन।